चलो भाई, टीम लिपिका इंट्रो। लिपिका स्टार्ट। As the world moves towards greater multipolarity, I beg to differ from my worthy opponents as to how the voice of the world's second largest continent, with over 17% of the world's population, shall not matter. Beginning from the geostrategic centrality of Africa connecting the east and the west of the world, to offering the world one of the earliest civilizations, to sustainable tribal practices of agriculture, architecture, metallurgy, climate change, to being the supply hub of strategic mineral resources, including gold, uranium, cobalt, etc., to possessing over 9 biodiversity hotspots of the world, to constituting 54 votes in the 193-membered UNGA, to transpiring as a multilingual hub of the world with over 2,000 native languages, to contributing to over 10% of the world's GDP during the first century AD, to becoming the youngest continent in the world in 2050, to being the fastest growing continent in the world, it is nobody's argument that the world will turn a deaf ear to the African land. Africa has advanced to become a mere lost continent, from a mere lost continent to partnering with the world's most advanced economies, that includes the United States, the European Union, China, India, Britain, Israel, etc., covering a wide area of cooperation, including renewable energy, sustainable and disaster-resilient infrastructure, vaccine development, counter-terrorism operations, digital economy, etc. The unfortunate events of coloniality and radicalization has although hindered some aspects of development, but are far-fetched from putting a full stop in the African resurgence. And to ensure that very resurgence, Africa must be approached with empathy, not as a business. It must be treated as a partner, not as an arena. The goal must be interdependence and not dominance. We are here to argue that Africans can reclaim their future and take responsibility for their destiny despite the doomsday scenarios of the Afro-pessimists. Thank you. Good. Nice. Shruti. If there was ever a glimmer of hope that 2020 would see a break in the cycle of armed conflicts in Africa, continued fighting in several war-torn countries dashed any cause for optimism. The 2013 pledge by African leaders to silence the guns by 2020 remained unrealized. Instead, the sound of the gunfire grew even louder, claiming thousands of lives in the process. In a region where state overreach and repression were already major concerns, 2020 saw the situation worsen. Serious violations and abuses of international humanitarian and human rights law have always remained pervasive. From the 10-year conflict in northern eastern Nigeria to the newly erupted conflict in the Tigray region of Ethiopia, security forces, armed groups and militias committed atrocities with impunity. UN listed out 46 least developed countries, among which 34 are African countries. In almost every country monitored, states of emergency were imposed to curb the spread of COVID-19. However, these measures were frequently used to violate human rights, including by security forces that used excessive force to enforce them, which in many instances led to deaths, injuries, including in Angola, Kenya, South Africa, Togo, and Uganda. The devastating impact of conflict was compounded by COVID-19 pandemic as well as locust invasions and climatic shocks. These converging factors took their toll on populations, revealing deep-seated barriers to and structural fissures within systems for the protection of human rights. The pandemic particularly exposed the deplorable conditions of public health care as well as inequalities in access to basic socio-economic rights. The socio-economic development in Africa asserts that the links between Africa's growth and poverty reduction points to high population growth, poor initial conditions, and the nature of Africa's growth process as the major key factors in its lesser performance in poverty reduction. Al-Shabaab and other Salafi jihadi groups in East Africa are positioned to benefit from Ethiopia's crisis. Salafi jihadi groups have never established a significant foothold in Ethiopia but are attempting to make inroads. Nowhere on earth do pirates strike more often than the Gulf of Guinea, where more than 130 sailors were taken hostage last year. The area is more dangerous than the Somali coast. While the Navy is monitoring one part of Gulf of Guinea, an attack is reported on the same day 100 miles down south. From the outside of the beautiful bethlines of Nigeria, inside is a problematic history. Within the vast creeks of Niger Delta, this region is already struggling with old thefts. For Africa, it has always been extremely difficult to disentangle from the colonial perfected role for the state before the systematic disarticulation in the indigenous economy and intrinsic time with the external economy.
The work also made a startling stark revelation discovering The work also made a startling stark revelation discovering through the analysis that deep-seated corruption in most African states and the selfish behavior of some of the political leaders to sit tight in the office even when they have obviously outlived their usefulness in the eyes of their people are attributable to the effects of colonialism and imperialism. For African states to overcome their present social, economic, political, health, education, wars, etc., there is a need for the people and the leadership to create their own indigenous identity, culture, technology, economy, education, religion, craft, and whatnot that could be interwoven for good governance. But the biggest question is, does Africa know? Does Africa realize? Good. Good. But the problem is, बोला तो बहुत अच्छा है, but problem is 1 मिनट ज़्यादा लिया है. 2.5 से 3.5 मिनट पे एंड हुआ है. I did not stop because it was introduction, but you have to compensate for it. So for next 4 speakers, you will get only 45 seconds. ठीक? Because you have taken 1 extra minute in the intro. ठीक है? Sir, 30 seconds for technical issues. क्या नहीं कोई इशू नहीं था पूरे में. मैंने रोका ही नहीं, बिल्कुल मैंने पूरा जिन्होंने जब से बोला आखिरी तक मैंने नहीं रोका. ठीक है, बाकी बोला काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव चीज़ें बोली हैं. ठीक है, खैर. नाउ टीम लिपिका, योर फर्स्ट स्पीकर. अभिनव, जी. स्टार्ट. जी. तो अपोनेंट ने बोला कि अफ्रीका में आर्म्स कॉन्फ्लिक्ट है और टेररिज्म की प्रॉब्लम है. मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि टेररिज्म की प्रॉब्लम कहाँ नहीं है. इन्होंने नाइजीरिया के लिए बोला, इथियोपिया के लिए बोला, टिग्रे रीजन के लिए बोला. डिस्पाइट दैट नाइजीरिया और इथियोपिया सबसे बड़ी और इमर्जिंग इकोनॉमीज में 8% और 6% का ग्रोथ रेट है उनका. अगर आप हेल्थ की बात करते हैं तो अफ्रीकन नेशन अपने जीडीपी का सबसे ज्यादा जो प्रोपोर्शनल लेवल है हेल्थ पे ये करते हैं. जैसे आप फ्रांस को ले लीजिए, ये चाइना से ज्यादा स्पेंड करता है. कुछ कंट्री 9% तक अपने जीडीपी का हेल्थ पे स्पेंड करते हैं. और अगर आपने क्लाइमेट चेंज एंड लोकस्ट की बात की तो क्लाइमेट चेंज पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट कर रहा है. तो इसमें अफ्रीका ही नहीं है. और किसकी वजह से कर रहा है आपको ये देखना होगा. अफ्रीका सबसे ज्यादा वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज पे और वो डेवलप्ड नेशंस की वजह से. इस वजह से मैं और टाइम अप. तो इन्होंने टेररिज्म का काउंटर दिया है कि इट इज़ डेवलपिंग इमर्जिंग इकोनॉमीज. प्लस इन्होंने बोला है कि भाई आप टेररिज्म के लिए बोल रहे हैं बट जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है अफ्रीका में इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड. 9% हेल्थ ऑफ जीडीपी तक जा रहा है. और उसके बाद इन्होंने बोला है कि क्लाइमेट चेंज से भी जो श्रुति ने जो श्रुति ने चीज़ें बोली हैं उनका पिन पॉइंट जवाब दिया है. और उसके बाद इन्होंने बोला कि क्लाइमेट चेंज जो है अफ्रीका को थ्रेट कर रहा है बट उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है. उसका रिस्पॉन्सिबल वेस्ट है. ठीक है, तो वो ध्यान रखिए. टीम श्रुति, कौन बोल रहा है? गौरव. So, the quarterly ranking of 198 countries, so Sub-Saharan Africa is now home to 7 of world's 10 riskiest locations, making it the worst performing region globally. Burundi saw the greatest increase in risk, dropping 37 place to become 27th riskiest nation globally. Ivory Coast 30th and Tanzania 32nd witnessed similar falls, while Chad, DRC, Ethiopia, Kenya, Mozambique and Senegal also saw their scores significantly worsen. West Africa is currently shouldering the brunt of terror attacks. This mostly results from significant deterioration of the security situation in the Sahel and intensification of Boko Haram attacks in the Chad, Nigeria and Cameroon. From Somalia to Mali and Nigeria to Mozambique, the continent has repeatedly witnessed grisly attacks of violence targeting. Sahel region has emerged as the key battleground of the conflict between Al-Qaeda and Islamic States. This competition between Al-Qaeda and Islamic State affiliates has also escalated conflict in the Horn of Africa, where Al-Qaeda affiliates Al-Shabaab and the Islamic State in Somalia. In Somalia, for example, Al-Shabaab has killed at least 4,000 civilians from 2010 to 2019. In the CAR, the conflict between Muslim Seleka and Christian Anti-Balaka armed group fueled... Time up. अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए. अभिनव ने काउंटर किया था टेररिज्म को इमर्जिंग इकोनॉमीज, हेल्थ एक्सपेंडिचर और क्लाइमेट चेंज से. ठीक है ना. उसके बाद इन्होंने जो बोला वो ये कि नहीं भाई साहब, अब
वॉयलेंस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में इट इज रेजिंग, और इन्होंने एग्जांपल्स दिए. बट प्रॉब्लम इज आपने जो 1 मिनट लिया उसका पहला 10 सेकंड इस चीज पर एड्रेस होना चाहिए था कि ठीक है आप ये बोल रहे हो कि अफ्रीका इमर्जिंग इकोनॉमी है, बट उसके साथ साथ आप देखो कि अफ्रीका में कितनी वायलेंस हो रही है, और इतनी वायलेंस होगी तो आपकी इकोनॉमी भी कब तक इमर्जेंट रह पाएगी. बिकॉज फॉर हैविंग अ साउंड इकोनॉमी यू मस्ट हैव पीसफुल डोमेस्टिक एनवायरमेंट. तो वहां पर कुछ नंबर कटेंगे आपके. ठीक है, हालांकि मैंने आपको ये इस बार 1 मिनट पूरा दे दिया है, लेकिन अब 45 सेकंड नहीं मिलेंगे. ठीक है, टीम लिपिका. बाईस सेकंड हो गए. मैं बोलूं? बोलो. आपने बोला कि टेररिज्म बढ़ रहा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आज दुनिया में सबसे ज़्यादा काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस आज दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पहली चीज़. और दूसरी चीज़ ये कि आगे चल के अफ्रीका ही उन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस का सेंटर बनेगा, और ये कि अफ्रीका कैन गाइड द वेस्ट इन टैकलिंग टेररिज्म बैक एट होम. That is why it will become the future. That is why its voice will become the future. और दूसरी चीज़ ये कि जैसे श्रुति ने बोला था लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज है. आज जो वर्ल्ड को ग्रोथ फ्यूल कर रही है वो डेवलपिंग कंट्रीज है. कल को यही लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज बनेंगी, और यही कंट्रीज बाकी वर्ल्ड ग्रोथ को फ्यूल करेंगी. एंड दैट इज वाई अफ्रीकाज वॉइस विल मैटर इन द फ्यूचर. थैंक यू. गुड. So that is some counter. Team Shruti. Bhumit. 15 seconds. Addressing to Lipika, future cannot be predicted as the world is dynamic. Africa, having the oldest economic history from the time human society came into existence, till date it is not able to provide itself a path to stand in the global arena. Not in the past, not till present, then how about future? Let's talk about sustainable development goals. The Central Africa is the worst performer of Sustainable Development Goal number 3, number 1 and number 16. I think these are the most basic necessities that every citizen of the country acquires. Let's talk about agriculture. The sub-Saharan African agriculture remains lower than the rest of the whole world due to lack of knowledge, climate sustainable crops, measures to maintain soil health. Next, let's talk about economy. Most fluctuating inflation rate, lack of basic requirements, lack of tech, in fact internet, low food security, civil wars across the continent, and a never-ending list. This is Time up. तो इन्होंने लिपिका के फ्यूचर के प्रोडिक्शन को इन्होंने कहा कि फ्यूचर डिपेंड्स ऑन द पाथ ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट, कि जो आपके ट्रेंड्स हैं उसी से फ्यूचर आपका डिसाइड होता है. और इन्होंने कहा कि आज जो ट्रेंड्स हैं उसमें एसडीजी में वर्स्ट परफॉर्मिंग है कुछ सब सहारन कंट्रीज, सब अफ्रीकन कंट्रीज. ठीक है, हाँ. और इन्होंने एग्रीकल्चर की बात की कि एग्रीकल्चर में जो है वो वर्स्ट परफॉर्मर है. ठीक है, इकॉनमी में भी. ठीक है, टीम लिपिका. अंजलि. Go ahead. A second. 15 seconds. Start, Anjali. Okay, so with increase in population to 2.2 billion people, Africa will have world's biggest workforce in 2035. And when you're talking about education, since 2000 enrollment in primary school has increased from 60 million to 150 million. Adult literacy rate up to 10%. And not only that, but adult gender gap in literacy is shrinking. With increased education, sense of security is increasing. And
With more education, more connected people are becoming more globally competitive. As education improving, there is growth of telecommunication and economic access. And not only that, in the area of agriculture, there is agriculture employs 2/3 of the continent's working population, contributes 20 to 60% of every country's GDP. And when it talks about its development, I would like to say that 70% of the world's population, 9.6% of global oil output, 90% of the world's Time up. 90% of the world's Time. oil supply. Yes, sir. टाइम अप. सो इन्होंने पॉइंट्स बोले हैं कि सबसे जब बड़ी वर्कफोर्स होगी बाय 2035, एजुकेशन का एक्सेस इंक्रीज हो रहा है, जेंडर गैप श्रिंक हो रहा है, लगातार ग्लोबलाइज होते जा रहे हैं, और एजुकेशन बढ़ने से ग्लोबल इकोनॉमीज और ग्लोबल वैल्यू चेन्स में कनेक्ट हो रहे हैं. एग्रीकल्चर वर्कफोर्स बहुत बड़ी है, और जहां पर मैंने इन्हें रोक दिया उसमें कह रही थी कि हमारे पास में पेट्रोलियम और ये सब के एक्सेस भी अच्छे खासे हैं. ठीक है. टीम श्रुति, भूमित, 15 सेकेंड स्टार्ट. स्टार्ट. Directly picking up the points Anjali said, having a human resources of 121.61 crores, natural resources like gold, uranium, petroleum, out of least developed 46 countries, 36 countries come from African continent. Next point, poor education. More than 2 out of every 5 African adults cannot read and write. Let's talking about the civil wars. This is very astonishing to believe that a continent having civil wars in almost every country. We can see in Sudan, South Sudan, etc. It is astonishing to believe that after huge resources, be it biotic, be it abiotic, the country is lacking in providing basic necessities to their citizens. Time It's very up. hard to be- Time up. So now the counter is कि भाई अफ्रीका में 8 में से 2 लोगों को पढ़ना नहीं आता है. द काउंटर इज कि अफ्रीका में 5 में से 5 में से 2 लोगों को पढ़ना नहीं आता है. और क्या था? और दूसरा था कि ह्यूमन रिसोर्स की उन्होंने बात करी थी, तो मैंने बोला था सिविल वॉर सब जगह चल रहे हैं. ह्यूमन रिसोर्स की बात करी थी, तो मैंने बोला था कि 121.61 करोड़ ह्यूमन रिसोर्स है, फिर भी वो कंट्री 46 आउट ऑफ 34 में से सबसे हाँ भाई, इनका कहना है कि ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज्यादा है, उसके बावजूद भी ज्यादा कंट्रीज एलडीसी हैं, एजुकेशन 5 में से 2 लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, और सिविल वॉर्स चल रहे हैं. दो द अपोनेंट टीम हैज अ गुड ओपनिंग हेयर, बट लेट मी सी वेदर दे कैन कैच इट और नॉट. टीम लिपिका. We would split it into two, 30 seconds. 30 seconds for me and 30 seconds for you. ठीक है, तो स्टार्ट. Taking cues from the facts presented by you, I would like to quote that Rome wasn't built in a day. You will have to give that country, the continent, its own sweet time as the world has taken for its progress. I would like to quote here the Agenda 2063 and its key principles, the key outcomes of that, where it focuses on focuses on the sustainable development goals. यहाँ पे वो लोग अपने sustainable development goals के साथ में अपने goals को बहुत ही beautifully merge करते हैं. उनके key outcomes डन. are 30 सेकेंड्स अप. आपने सिविल वॉर्स की बात करी. लेट मी जस्ट highlight one fact. Europe, which is 1/3 the size of Africa, has faced twice the number of civil wars that Africa has ever done. And did that stop Europe from becoming a global superpower? I don't think so. And least developed countries have already made that counterpoint that today African countries are least developed, tomorrow they would be developing and they would be the ones feeding the world. टाइम अप. वेरी 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 गुड. टीम श्रुति. सेकेंड हो चुके हैं. 20 हो गए हैं. रुचित. I get the point that the opposition is trying to make, and it's magnificent to hear such great points. But tell me something. You use the word colonization. You use some aspect
First of all, there was no importance given to the development of Africa. Second of all, the colonials worked for their own agenda. And third point, there was no natural progression in the industrialization process. Then, after they got independence from the colonizations, the corrupt leaders, they came in and they did exactly what the colonials did. So what kind of development you're talking about, I don't understand. Third point is that when you talk about the where is the political leadership of Africa? Where is the political leadership that everybody keeps talking about? They are corrupt. They don't give a damn about the people of the country. They don't give a damn about Africa in totality. Where is the education that you guys keep talking about? And that's the point that I would like to make. ठीक, जरा पहला आप क्या बोला था मुझे समझाना? Colonialism के ऊपर क्या था मतलब वो? That because of that process, there was no importance given to the development of Africa. The colonizers, they came in and they used Africa to fulfill their own agenda. अच्छा, ठीक है. हाँ भाई, तो इनके जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि अफ्रीका में जैसे आप यूरोप की और अफ्रीका की जो एनालॉजी ड्रॉ कर रहे हैं या कंपैरिजन जो ड्रॉ कर रहे हैं, सो इन्होंने कहा कि अफ्रीका और यूरोप अलग कैसे हैं, क्योंकि अफ्रीका को कॉलोनाइज किया गया था और कॉलोनाइजर्स का कोई इंटरेस्ट नहीं था डेवलप करने में अफ्रीका को, तो इसलिए अफ्रीका वाज अ नॉन स्टार्टर और अ पुअर स्टार्टर इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट. एंड देन ही इज सेइंग कि वहां की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो है ही नहीं. ठीक है, और पॉलिटिकल लीडरशिप ना होने के कारण इन्होंने ये मैप भी दिखाया है जो मैंने ही दिया था वैसे तो, लेकिन कोई नहीं, देख लो एक बार. ठीक है, ये मैप दिखाया है कि अफ्रीका के कौन से कंट्री को किस कंट्री ने, किस यूरोपियन कंट्री ने कॉलोनाइज किया. एक ये मैप अपना भी लाए, वो भी दिखाना बनता है. ये देखिए, ये भाई इन्होंने निकाला है, इनके लिए शाबाशियां. इसमें कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ कंट्री लिखा है, इसमें उसका मैप बना हुआ है, उस कंट्री का झंडा बना हुआ है. ठीक है, खैर. सो इन्होंने क्या कहा कि अफ्रीका की पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है. ठीक है, और ये भी अमीन दिया वैसे तो, अफ्रीका की पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है और अफ्रीका की पॉलिटिकल लीडरशिप करप्ट है, और जिसकी वजह से इनका कहना है कि भैया वहां डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, वहां पर एजुकेशन नहीं डेवलप हो पा रही है. टीम लिपिका. अंजलि, एक मिनट, इससे पहले अंजलि जाए. सो एवरीबडी, I am just trying to, after a speaker speaks, I am just putting out the point so everybody can listen, और आप सुन सको, समझ सको जवाब देने के लिए. क्या ये मतलब it makes sense, right? सबको सुनाई बनाई दे रहा है. आपके लिए डिबेट मैंने और आसान खोल दी है. मैं आपको की पॉइंट बता रहा हूं और आप उस पर काउंटर कर रहा हूं. ठीक है, अंजलि स्टार्ट. 15 सेकंड बात करूंगी. तो अगर ये कहते हैं कि अफ्रीका करप्ट है, तो what about Russia, Vietnam and India? They are also equally corrupt, and it is the reason of hindrance. Okay, fine, I understand it hinders the growth, but delaying is proper. Sir, will you please come out there? Africa is taking the combative issues. They started to take measures such as Mozambique report stood up against high-level corruption in 2020. Former transport minister was put on trial for money laundering in connection with national civilians. And it is said कि गवर्नमेंट में इतना ज़्यादा पावर नहीं है. I would like to remind them about the Pelin-Java Treaty, जिसमें उन्होंने 51 countries came together and they said that they will not supply the uranium and nuclear material which is uranium to other countries. And अगर वो इतने ही ज़्यादा weak है, so why did they have the spine to speak against China when during pandemic Chinese were being inhuman? They stood against them. I would quote with an example, saying this during pandemic, Benjamin Paul, spokesperson of the House of Representatives, saying no. Time up. Time up. Time up. Time up. Care. So she was on a very brilliant trail. मतलब I wish I had the power to not stop her. लेकिन नियम होते हैं. तो इन्होंने शुरू किया था रशिया वियतनाम के करप्शन से कि भैया अफ्रीका के आप करप्शन पर बात कर रहे हैं, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में वो सबसे ऊपर वो लोग आते हैं. फिर उन्होंने बात करी कि भैया मोजाम्बिक में जो करप्शन पर ट्रायल हुआ उस पर, और फिर उन्होंने बात करी पेलिन-डाबा ट्रीटी पर कि अगर वो लोग इतने ही करप्ट होते तो वो लोग साथ आकर के एक ट्रीटी साइन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जब पूरी दुनिया का हर एक कंट्री न्यूक्लियर मटेरियल चाहता है, यूरेनियम चाहता है, और उस समय पर वो पेलिन-डाबा ट्रीटी कर रहे हैं, इट शो सम स्पाइन. और आखिरी पॉइंट उन्होंने बोला कि दे हैड द स्पाइन टू स्पीक अगेंस्ट चाइना ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ पैंडेमिक. सो ब्रिलियंट काउंटर. ठीक है, टीम श्रुति.
20 सेकंड हो गए। पच्चीस स्टार्ट। Okay, so first of all, we're talking about Africa, and let me just take a few names. Abiy Ahmed, who is the Prime Minister of Ethiopia, who's considered to be very progressive. He is the issue that he's facing right now is political infighting and rising ethnic tensions. Then in Sudan, there was a civil war in 2019. Mohammed Hamdan Dagalo, he is a human rights abuser and currently the Deputy Chairman, Sovereign Council, and the Supreme Leader of Sudan. Then, when we talk about South Africa, Julius Malema is a radical left-wing freedom fighter whose party is hit with corruption charges. Zimbabwe, Nelson Chamisa is struggling to mobilize sufficient database to destabilize the ruling government under Emerson Mnangagwa. The main point that I'm trying to make over here is that the leadership of African countries is not stable. If the leadership is not stable, then there is no preparation. There is no preparation, there is no inclusiveness. If there is no inclusiveness, then there is no economic development. And how will you open... Time up! Time up! भाई इन्होंने 4-5 नाम लेकर के अभी अहमद का सूडान, अफ्रीका, जिम्बाब्वे, अलग अलग जगहों पर इन्होंने कहा कि वहां पर पॉलिटिकल लीडरशिप स्टेबल नहीं है, लेकिन इन्होंने ये बोलते बोलते 50 सेकंड लगा दिए। ठीक, और उसके बाद इससे जो मेन ड्रॉ होना था कि लीडरशिप स्टेबल नहीं है, लीडरशिप स्टेबल नहीं होगी तो इकोनॉमी कैसे स्टेबल होगी, डेवलपमेंट कैसे होगा, ये सब ये मतलब हल्का ही फुल्का बोल पाए। वैसे 30 सेकंड इसमें मिलते तो पॉइंट ज्यादा गहरा होता। लीडरशिप के ऊपर इसलिए उस पे ज्यादा एम्फसाइज। ओके, थैंक यू। सो ये चीज है, इन्होंने बोला कि लीडरशिप वहां की स्टेबल नहीं है विद एग्जांपल, और लीडरशिप स्टेबल में किसी को इन्होंने ह्यूमन राइट्स अब्यूजर कहा है, किसी को इन्होंने पॉलिटिकल इनफाइटर कहा है, कहीं कहा है करप्शन है, कहीं कहा है कि वहां पे स्टेबिलिटी नहीं है। ये सब इन्होंने बातें करी हैं और इसकी वजह से इनका कहना है कि भैया उन कंट्रीज में डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। टीम लिपिका। आरुषि। You have taken few names. I would like to get your attention to the recent crisis in USA, which comes under the developed countries. The crisis that US is facing under Joe Biden's presidency. I'm assuming you're aware of that. The Senate came out and opened and quoted that US may face a big crisis. I would want to question you on that. What would you say about that? Now US is a developed country. It is a developed country. So does that stop Africa from even getting a chance to go on the path of development? Also, I would like to quote here the Ethiopia example that you quoted. Ethiopia resisted China's intervention in the telecom industry. And the complete thing went to a lot of other countries like US and Britain and Kenya, while China is trying to exert its dominance in the telecom industry. So I would just like to say, and I would like to again quote here the Agenda 2063, the African Union's agendas and stuff, everything. So they are working towards it. Time up. तो इन्होंने जो है पहले तो यूएसए का कोट करा बिडेन, जिसमें इन्होंने ज़्यादा समय ले लिया, और उससे जो मेन पॉइंट ड्रॉ हो रहा था कि अगर यूएसए बिडेन के अंदर में इतना अनस्टेबल हो सकता है, इसका मतलब कि नेशन बिल्डिंग में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, लीडरशिप आएगी, कमज़ोर होगी, और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि लीडरशिप कहीं की भी कमज़ोर हो तो वहाँ की जनता नेचुरली उस लीडरशिप को हटा करके नई लीडरशिप इलेक्ट करे, बिकॉज दैट इज द एसेंस ऑफ दिस स्पॉन्टेनिसिटी इज द एसेंस ऑफ अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। ठीक है ना, क्योंकि अगर ये नहीं होगा, यदि चाइना को इथियोपिया रेजिस्ट कर रहा है और चाइना बाहर से जबरदस्ती प्रोटेस्ट फाइनेंस करने की कोशिश कर रहा है, दैट इज डिस्टेबलाइजिंग फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, तो वो ध्यान रखिए। तो गुड वन टीम श्रुति। बीस सेकंड हो ही गए। स्टार्ट। You guys are continuously addressing United States as well as Russia. I think you two are not sure about the future of Africa.
We are talking about the future of Africa, so we should not consider Russia as well as United States. How China is expanding in Africa? This is because Africa is not even capable of extracting their own resources with their own power. They are dependent for food as well on other countries, including United States as well as many other countries, right? So it is very astonishing to believe that a country with a huge resources, biotic as well as abiotic, is dependent on other countries for extracting those resources, and very hard and immature to say that the mute voice will ever matter. तो इनका कहना यह है कि भैया चूंकि अफ्रीका कुछ कर नहीं पा रहा है, अफ्रीका को अपने रिसोर्सेज भी एक्सट्रैक्ट करना नहीं आता है, और अफ्रीका की वॉइस म्यूट है, अफ्रीका इज नॉट एबल टू मेक enough noise for itself, इसलिए how can you say that Africa's voice in future will matter? सवाल है, मतलब मेन पॉइंट है कि अफ्रीका lacks in capacity, and because Africa lacks in capacity, it is not able to make enough noise. हाँ, एक और पॉइंट था कि they were talking about कि रशिया में ये हो रहा है और अफ्रीका में, मैं ये कह रहा हूँ कि हम अफ्रीका की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे रशिया की बात नहीं करेंगे। इनका ये कहना है कि हम चूंकि अफ्रीका की बात कर रहे हैं तो हम बुरा मान जाएंगे अगर आप यूएसए और रशिया की एनालॉजी ड्रॉ करोगे तो। रशिया यूएसए एक कंट्री है, अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है। रशिया इनका इनका कहना है कि यूएसए एक नहीं, अरे रे 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 एक मिनट अरे चुप। इनका कहना है अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है और यूएसए एक कंट्री है। ये आपके फायदे की बात है, यू कैन रिप देम अपार्ट, ठीक है। खैर, टीम लिपिका। अंजलि 15 सेकंड ले लो। पहले तो उन्होंने बोला कि चाइना एक्सपेंड कर रहा है और अफ्रीका साथ मिलकर नहीं आ रहा है, तो आई वुड लाइक टू से कि चाइना एक कॉन्टिनेंट नहीं है, बट अफ्रीका इज अ कॉन्टिनेंट। नो अदर कॉन्टिनेंट देन अफ्रीका हु इज कमिंग अलोंग ऑल टुगेदर। नो अदर कॉन्टिनेंट इज वर्किंग सो हार्ड लाइक टुगेदर। यूनियन ऑफ 55 नेशन, अफ्रीकन नेशंस स्पोक इन वन वॉइस अगेंस्ट चाइना। And second, so basically Africa is not letting itself used by any country but looking forward for its development by any means. If it goes against the dignity of Africa, the given example it shows Africa will have voice to stand against the right and the wrong. And not only that, when it comes to the development of Africa's own side, then I would like to say, OPU 90% of the trees lost in Gabon. These goods are exported to Japan, Israel, European Union, Europe. And fishing industry has annual export of value to $2.75 billion. Continent produces 55% of the world's time. What are you telling that India is, Africa is not having anything to give? It's two-way process. If development is done in the continent, then टाइम अप। एक तो इतना तेज बोलती है ना, बिल्कुल एकदम राजधानी छूटी हुई है, एक बार छूट गई तो रुकेगी नहीं दोबारा। तो इन्होंने बोला कि भाई पहला तो ये कि अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, एक देश नहीं है, और सबसे तगड़ा काउंटर इन्होंने एक लाइन बोल करके किया कि जिस तरह से 54 कंट्रीज 54 कंट्रीज साथ आकर के एक वॉइस में वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म्स पर, वर्ल्ड के मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स पर यूनिटी से बोल रहे हैं, दैट इज़ वन ऑफ अ काइंड। और ये अफ्रीका की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होने वाला है फ्यूचर में, और ये यूनिटी ही अफ्रीका को खास बनाती है, ठीक। तो जो म्यूट वाला इनका था, म्यूट वॉइस, उसका क्या जवाब आया है, एंड इट इज़ वेरी 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 गुड कि जो म्यूट आपने जो कहा कि अफ्रीका की वॉइस, ऐसे वहां बैठ के क्या कर रही हो, इधर होती तो कुछ कर पाती। तो इन्होंने जो कहा कि अफ्रीका की वॉइस म्यूट है, तो उसका इन्होंने जवाब दिया कि एक अकेला चना भले भाड़ ना फोड़ सके, लेकिन जब 54 कंट्री साथ आ जाते हैं, यू कैन नॉट ब्रेक पैक ऑफ वुड्स rather than you can break them individually. फिर उन्होंने बोला कि अफ्रीका हैज़ अ लॉट टू गिव, 90% गुड्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं यूरोप, इजराइल में फिशिंग अच्छी खासी हो रही है ना, ऑल दैट, ठीक है। तो दैट इज दैट। खैर, टीम श्रुति। गौरव 15 सेकंड ले लो। स्टार्ट, बताओ भाई। हाँ, तो अंजलि जी ने बोला जैसे कि अफ्रीका यूनाइटेड होकर सबका मतलब डेवलप हो रहा है, अच्छी बात है।
तो इनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है उसमें मैं ध्यान देना चाहूँगा। अफ्रीका इकोनॉमी डिपेंड heavily on rain-fed agriculture and population majority depend on food as fuel. Several countries are now investing in hydropower which also depend on water availability and sensitive to climate change. Africa faces several other structural impediments including natural resource dependence, gender inequality, social distributed research which discourages people from investing in the income activities. बुर्किना फासो जो कि 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गोल्ड का, वहाँ ना आपकी अच्छी एक्सेस है हेल्थ की, ना ही तो आपका एजुकेशन बढ़िया है, ना ट्रांसपोर्टेशन है, और वहाँ पे लोगों को ऐसी मतलब फ्रांस जो कंट्री है वो ड्रग्स दे के आपको माइनिंग के अंदर भेजता है, वहाँ पे उनके हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। और हाँ, अफ्रीका वॉइस है, मैटर करेगा फ्यूचर, पर अफ्रीका के लिए नहीं, वो मैटर करेगा चाइना के लिए, वो मैटर करेगा फ्रांस के लिए, वो मैटर करेगा यूएस के लिए, बट नॉट फॉर अफ्रीका इटसेल्फ। और टाइम अप, बहुत बढ़िया, ठीक, बहुत 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 तगड़ा, ठीक है, मतलब यू गाइज आर लेवलिंग, इंक्रीजिंग द बार। सो इन्होंने कहा है, ये मैप दिखा करके इन्होंने मैप दिखाया है, और इन्होंने मैप दिखा करके कहा है कि भाई बुर्किना फासो में इतना ज्यादा गोल्ड हो रहा है, उसके बावजूद भी जो है वहां पर लोगों के पास ना हेल्थ का एक्सेस है, ना किसी चीज का एक्सेस है, और फ्रेंच जो माइनर्स हैं वो आपको ड्रग्स दे करके, नशीले पदार्थ खिला करके माइनिंग के लिए भेज रहे हैं। अफ्रीकाज वॉइस विल मैटर, बट खुद के लिए नहीं, किसी यूएसए के लिए, किसी चाइना के लिए, किसी फ्रांस के लिए, किसी ब्रिटेन के लिए, किसी इटली के लिए। बहुत बढ़िया टीम लिपिका। अंजलि 15 सेकंड ले लेना प्लीज। हाँ बोलो। ये कैसी बात कर रहे हैं कि एजुकेशन में कुछ नहीं हो रहा है या फिर में नहीं हो रहा है? They have started teaching in a planned way. Agenda 2020 to help women to get into the business was 2011 government pushed implementation in economic empowerment where women are getting empowered. Africa will be the 1.3 billion people by 2050, and with that, 5G market will grow rapidly. 700 MPS smartphones users in 2030. And what are you telling me? क्या कहते हैं वो डेवलप नहीं कर रही है, दूसरी कंट्री के लिए कर रही है? Excuse me. I would like to say that it has become sort of 15% growing economy in the world, and while you have been nearly 70% of Africa's 44 network, America countries like Google, Facebook, Amazon are also helping to improve Africa's investment. सारी अफ्रीका के लिए तो हो रहा है, अफ्रीका में भी हो रहा है। अगर कोई को लग रहा है कि उधर जा रहा है, तो इधर भी तो डेवलपमेंट हो रही है। अफ्रीका का स्टार्टअप last year reached $2.02 billion in equity funding. Africa's startup industry is accomplishing new milestones, and not only that. According to London-based think tank, Africa's total GDP could hit $2.6 trillion very year. So how can you say this? That it is for them only. बस अरे हेलो, होल्ड पाजी। सॉरी यार। एक हाँ उसके पॉइंट के लिए सपोर्टिंग। हाँ भाई, ऐसा है कि इन्होंने ये ट्रांसफॉर्मेशनल आउटकम्स ऑफ एजेंडा 2063 इन्होंने दिया है, और ये आप ले लीजिए, ये वाला इनका वाला जो था ये आप ले लीजिए, ये मैं ले लूं, ठीक है, ये अभी आप ले लीजिए, ठीक, ये पूरा वहां तक जाने दो, ठीक। देखिए, अंजलि ने गौरव के पॉइंट का बहुत टेक्निकल और बहुत ही कहते हैं ना बिल्कुल टेक्निक के साथ उस लॉक को पलट दिया है, ठीक। गौरव ने कहा था कि अफ्रीका की जो वॉइस है वो मैटर करेगी फ्रांस के लिए, यूएसए के लिए, और अंजलि ने बताया है कि भले ही अफ्रीका ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में लास्ट स्टार्टर हो, लेकिन वो ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व हो चुका है। और इसके लिए इन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं कि इक्विटी फंडिंग दुनिया भर से आ रही है, यूएसए इन्वेस्ट कर रहा है, गूगल, अमेजॉन, फेसबुक वगैरह वहाँ पर CSR प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं, वहाँ पर एजुकेशन, हेल्थ का एक्सेस बढ़ा रहे हैं। और इन्होंने बोला है कि जिस ग्लोबलाइजेशन से इंडिया, चाइना, हांगकांग, वियतनाम, मकाऊ डेवलप हुए, वही ग्लोबलाइजेशन लास्ट अपने लेग में ही सस्टेनेबल तरीके से ही सही, इक्विटेबल तरीके से ही सही, लेकिन क्या करेगा? अफ्रीका को डेवलप करेगा। बढ़िया टीम। श्रुति, हाँ बोलो। 15 seconds.
दिस टाइम अलग लेवल आ रहा है डिबेट का, तो आई होप कि अगली बार भी डिबेट का लेवल बहुत ऊपर जाएगा, ठीक है। मतलब दिस इज़ रियली रियली नाइस कंसिडरिंग कि आप सब लोग ह्यूमन रिसोर्स पर इतने शॉर्ट थे, हर व्यक्ति की कोई समस्या थी, कॉलेज वॉलेज के चक्कर में इन लोगों का, अनुष्का का, लोगों ने पार्ट नहीं लिया, उसके बावजूद भी जिस तरीके से आपने जो अभी तक जो लेवल है इट इज़ मैग्निफिसेंट। और इंडिया अफ्रीका जो मैंने 2 वीकेंड लिए, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल वो अब ये उसकी पिनैकल है। अगर आप इस डिबेट को रिवाइज कर लोगे तो इंडिया अफ्रीका या इवन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर आने वाला सवाल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर आने वाला सवाल और डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग वर्ल्ड के बीच में जो गैप्स हैं उन पर आने वाला सारा सवाल भी और ग्लोबलाइजेशन के पे आने वाला सवाल भी आप एड्रेस कर सकते हो इस डिबेट को, अगर आपने कंपाइल कर लिया आखिरी में सही से। तो श्रुति, I will counter to what they said for women empowerment. So in Nigeria, government force launched indiscriminate attacks in the context of the conflict in Northeast. In one such incident, at least 10 children and 7 women were killed when the Air Force bombed a village in Gombo State. Talking about FGM in Africa, female genital mutilation is known to be practiced among certain communities in 29 countries including Benin, Burkina Faso, Cameroon, Central African Republic, Chad and many more. An estimated 200 million girls and women alive today are believed to be subjected to FGM, and the rates have been constantly increasing. FGM has serious implications for sexual and reproductive health of girls. Immediate complications might include severe pain, shock, hemorrhage, infections, ulceration, and many more. Long-term consequences include complications during childbirth, anemia, the formation of cysts, and keloid scar formation, damage to urethra resulting in urinary inconsistence. One more thing I will say in टाइम अप। इन्होंने कहा, सो दिस इज अ नाइस टर्न टू द डिबेट। इन्होंने कहा कि ठीक है आप लोग ये सब बातें कर रहे हो कि अफ्रीका हैज अ लॉट टू ऑफर। अंजलि का पॉइंट ये था ना, अफ्रीका हैज अ लॉट टू ऑफर, इट इज एग्जैक्टली देयर एट शी एंडेड। तो श्रुति ने उठाया है कि भैया अफ्रीका ऑल्सो हैव अ लॉट अदर थिंग्स टू ऑफर, जैसे फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, ठीक है ना, जिसमें से आप फीमेल्स के जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उनको म्यूटिलेट करते हो, उनको वहाँ पर जो है आप इस तरह की चीज़ें करते हो, और उसका जो है वो हेल्थ पर कितना गलत इम्पैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से अफ्रीका की जो आधी आबादी है, जितने 22% इन्होंने बताया 29 कंट्रीज में प्रेवलेंट है, जिससे उन 29 कंट्रीज की जो आधी आबादी है वहाँ पर क्या चल रहा है और उन पर कितना उसका इमोशनल और मेंटल और फिजिकल स्टिग्मा कितना ज़्यादा होगा, वो आप सोचिए अफ्रीका ये भी लोगों को दे रहा है। टीम लिपिका, start. You're talking about all sorts of things that are going in Africa against women. आप जिस कंट्री में रहती हैं, मैं वहाँ की बात करना चाहती हूँ, मैं इंडिया की बात करना चाहती हूँ कि यहाँ पे मैरिटल रेप जैसी एक चीज़ अभी भी इलीगल नहीं है। तो क्या आप मना कर देंगे इस बात को कि इंडिया जहाँ पे एक सुपर पावर बनने की बात कर रहा है, यहाँ पे मैरिटल रेप इलीगल है? आप कैसे बात कर सकते हैं कि अफ्रीका को एक फेयर चांस नहीं मिलना चाहिए? अगेन फोकस ऑन द पॉइंट दैट development is gradual. Rome wasn't built in a day. You have to give considerable time for a place to develop. It's a continent, it's an integrated continent, and I would like to quote here the Agenda 2063 goals. यहाँ पर मैं कुछ goals को quote करना चाहूँगी, जिसमें आपने जितने points अभी तक quote किए उसमें इनके मेजर गोल्स जिन पे इनका फोकस है वो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट इकोनॉमीज एंड कम्युनिटीज, यूनाइटेड अफ्रीका, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, केपेबल इंस्टीट्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप इन प्लेस, पीस सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, प्रिजर्वेशन ऑफ दैट, अ स्टेबल एंड पीसफुल अफ्रीका, engaged in empowerment youth, empowered youth and children, and at the end Africa takes full responsibility for financing her development goals. Would you still say that Africa would not matter in the future? टाइम अप। तो भाई इन्होंने कहा, इनके जवाब के 2 हिस्से थे। पहले हिस्से में तो इन्होंने कहा कि आप वहाँ पर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन पर वो कर रहे हो और इंडिया में भी तो बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं। फिर इन्होंने कहा कि डेवलपमेंट एक ग्रेजुअल प्रोसेस है।
जब आप लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज से और डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की जर्नी तय करते हो तो आपकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस इंप्रूव होती हैं, आप में एजुकेशन आती है तो साइंटिफिक टेम्पर आता है, और जब साइंटिफिक टेम्पर आता है तो जो इस तरह की प्रैक्टिसेस हैं वो भी खत्म होती हैं। तो आप उनको उचित समय दीजिए, ऐसा ये कह रही हैं। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। फिर उसके बाद इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बहुत पिन पॉइंटेडली और बहुत ही तगड़े तरीके से इन्होंने कहा कि एजेंडा 2063 गोल्स में अफ्रीका ने जो जो बोला है कि हम एनवायरमेंटली सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे, हम कैपेबल इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे, हम स्टेबल और पीसफुल अफ्रीका रखेंगे, हम अपने डेवलपमेंट को फाइनेंस करेंगे, और इन सबसे ऊपर यूनाइटेड अफ्रीका। ठीक, यूनाइटेड अफ्रीका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और इन इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी अफ्रीका का ये कहना कि देयर विल बी अ यूनाइटेड अफ्रीका, इट शोज हाउ दे वांट, व्हाट इज देयर स्ट्रेटजी फॉर मेकिंग देयर वॉइस मैटर इन द फ्यूचर। ठीक, हाँ। बिल्कुल, हाँ, वो मैंने बोल दिया है। टीम श्रुति। टाइम आप शुरू करो बोलना। ओ भैया। I will be speaking. People with albinism continue to face violent attacks and mutilation in Zambia. The dismembered body of a 43-year-old man was discovered in March. His eyes, tongue and arms had been removed. In April, a man's body was exhumed from a grave and his body parts were stolen. In Malawi, the grave of a 2-year-old boy was tampered with in January. The following month, a 92-year-old woman had 2 toes severed in an attack by an unidentified assailant. In a region where state overreach and repression were already major concerns, 2020 saw the situation even worsen. Governments took advantage of COVID-19 pandemic to intensify reactions on their rights to freedom of expression, peaceful assembly and association. Meanwhile, lockdowns and curfews increased the risk of sexual and other gender-based violence which targeted women, girls, while the survivors struggled to get access of healthcare, legal aid and justice. Time up. तो भाई इन्होंने जो पॉइंट बोला है वो ये है कि अफ्रीका में आप तो अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हो कि 2063 एजेंडा है और दुनिया है, लेकिन चल क्या रहा जमीन पे। इन्होंने कहा चल ये रहा है कि एक 92-ईयर-ओल्ड महिला के टोस जो है वो काट दिए जा रहे हैं, 2 साल के बच्चे को मारा जा रहा है, उसकी ग्रेव के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, मतलब बड़ा खराब स्थिति है, ऐसा ये कह रही हैं। ठीक, और उसके बाद इन्होंने कहा कि कोविड-19 ने सिचुएशन और वर्सन कर दी है क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है वो लॉकडाउन्स का और इन सब चीज़ों का यूज़ किया है लोगों की वॉइस को सप्रेस करने के लिए। और उसके साथ साथ में क्या हुआ है कि बिकॉज लॉकडाउन्स वगैरह लगे हुए थे, सारी चीज़ें थी, और तो उससे क्या हुआ है कि अफ्रीका में जो सेक्सुअल वायलेंस है या इस तरह की जो वायलेंस है उसके लिए खतरा और बढ़ गया है। टीम लिपिका। आरुषि चाहिए नहीं, नहीं कोई नहीं, तुम्हें 15 सेकंड चाहिए नहीं। हाँ चलो चालू करो। मैं अगेन इंडिया का एग्जांपल कोट करना चाहूंगी। क्या आपने निर्भया रेप केस के बारे में सुना है? क्या आपने निठारी कांड के बारे में सुना है? क्या कहना चाहेंगे आप लोग इसके बारे में? और जहां तक कोविड के बारे में बात की जाती है, कोविड इवन सब सहारन अफ्रीका में कोविड के बाद रिक्यूपरेशन रेट वाज एक्सेप्शनली गुड. The slower spread of virus shows that they have increased awareness and responsibility. The mortality rate was really low. Strong agricultural growth has been observed and faster than expected recovery in commodity prices had been registered. Multi-species recovery was observed in Nigeria, South Africa and Angola. Crime rates की अगर बात की जाए, so Venezuela tops the charts. So what are you talking about? Every country, every developed country in the world right now is facing everything like that. So ये एक gradual process है. Again I'm quoting, it's a gradual process. Everybody should get their fair chance to stand up. Time up. Again great technical reversal. ठीक है, to the point जो ये इन्होंने बोला कि violence है और ये है, तो इन्होंने 2 तगड़े एग्जाम्पल निकाले।
निर्भया तो सबको पता था, बट उससे अगला इन्होंने एग्जाम्पल निकाला निठारी कांड का, और निठारी कांड का एग्जाम्पल निकाल करके इन्होंने प्रॉपर आपका जो पॉइंट था उसको पलट दिया है। क्यों? क्योंकि है क्या कि जब इंडिया 2011 में अपनी डेवलपमेंट जर्नी के दौरान 2008 में निठारी कांड हुआ, 8 या 7 में 2011 में आपका निर्भया हुआ, और उसके बाद आज इंडिया की इकोनॉमी कोविड से पहले दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी। तो जब ये हो सकता है तो अफ्रीका में वो क्यों नहीं हो सकता डेवलपमेंट आने के बाद में? उसके बाद इन्होंने कहा कि कोविड में अफ्रीका की मोर्टेलिटी बहुत कम थी, कोविड को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से काउंटर किया। उस समय एग्रीकल्चर ग्रोथ भी ज्यादा थी, और उन्होंने कहा अगर आप क्राइम की बात कर रहे हैं तो दुनिया भर में क्राइम हो रहे हैं, वेनेजुएला में तो सबसे हाईएस्ट क्राइम हो रहा है। ठीक है, तो अगेन अ गुड वन, टीम श्रुति। तो तुम लोग बीच में बोले, इज इट टाइम? सर तीसरी बार बोल रहे हैं लोग। हाँ नहीं, आप इस बार 45 सेकंड है इनके पास। हम लोग के 20 मिनट चल रहा है, 20 सेकंड। क्या हो गया? ऐसी जो ऐसी चला लो, उसके नीचे धर दो। अरे भैया 30 सेकंड हो गए, बोलोगे? आपको रोकना था ना। तो बोलो, 45 सेकंड है इस बार। 45 seconds. Start. First of all, I would like you all to please stick to the topic. We are not talking about here. We are not here talking about India or any other country. We are talking about Africa's future. Second point, you took two names, Nirbhaya Kand and Kothari Kand. Yeah, वही. तो क्या आप उसको मेंशन करने से उसको ग्लोबल अरीना पे लेजिटिमाइज करना चाहते हो? मतलब आप ये चाहते हो कि एक कंट्री में ये हो रहा है तो बाकी सारी कंट्रीज भी उसको फॉलो करें, ऐसा तो नहीं है। दूसरी चीज, अगर आप ये सब चीजें उठा रहे हो तो साउथ सुडान ये कैसे डिवाइड हुए, कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ये कैसे डिवाइड हुए? और तीसरी चीज, आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बात करी, जो कि यूनाइटेड नेशंस की एक वेबसाइट है sdgindex.org, इस पे क्लियरली मेंशन्ड है कि अफ्रीका इज द वर्स्ट। टाइम अप। तो इन्होंने कहा कि भैया पहले तो आप टॉपिक पे स्टिक करिए, ठीक है, कि हम अफ्रीका की वॉइस की बात कर रहे हैं और हम दुनिया भर के वो नहीं बोल रहे हैं, विच is not right at this juncture because we are talking about development, and when we talk about development, so we draw analogy of all kinds from the examples available in the world. ठीक है। नंबर 2, इन्होंने बोला कि निठारी और निर्भया वाला कि अगर वहां वो हुआ इसका मतलब क्या है कि आप उसको जस्टिफाई करते घूमोगे, पूरी दुनिया में इसको बोलते घूमोगे। और उसके बाद इन्होंने तीसरा पॉइंट बोली कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में यूएन कह रहा है कि अफ्रीका वर्स्ट परफॉर्मर है, जो शायद तीसरी या चौथी बार इनकी टीम बोल रही है। टीम लिपिका, मैं बोलो। तो आपने बोला कि हम टॉपिक से भटक रहे हैं, बट यू वर द वंस टू फर्स्ट ब्रिंग अप क्राइम्स। आई वाज नॉट द वन, वी वर नॉट द वंस टू ब्रिंग अप क्राइम। सेकेंडली, आपने कहा कि एसडीजी इंडिया ट्रैकर वो सब, एसडीजी ट्रैकर ठीक बात है। मैं आपको क्लाइमेट चेंज ट्रैकर की बात करते हैं, उसमें मोरक्को सबसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, सबसे ज़्यादा वही क्लाइमेट फ्रेंडली एक्टिविटीज़ कर रहा है। और आप फिर से सिविल वॉर पे गए कि साउथ सुडान और सुडान कैसे अलग हुआ। मैं फिर से आपसे पूछना चाहूँगी, कोसोवो, यूगोस्लाविया, ये सब कैसे अलग हुआ, रशिया कैसे अलग हुआ, क्यों एनालॉजीज नहीं ड्रॉ करें? बढ़िया, 36 सेकंड में डिस्ट्रॉयड। ठीक है, डिस्ट्रॉयड इन सेकंड्स। पेपर फाड़ दो। क्लाइमेट ट्रैकर में मोरक्को का एग्जाम्पल और कोसोवो और यूगोस्लाविया का एग्जाम्पल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोसोवो और यूगोस्लाविया का एग्जाम्पल यहाँ इसलिए देना बड़ा अच्छा और बड़ा जरूरी था, मतलब बड़ा टाइमली था, क्योंकि कोसोवो और यूगोस्लाविया का डिसमेंबरमेंट हुआ है 1990s में, और अफ्रीका में सिविल वॉर्स भी उसी समय पर या उससे पहले स्टार्ट हुए थे। मतलब अफ्रीका में जब सिविल वॉर चल रहे थे, जब अफ्रीका कम डेवलप था, उसके बाद यूरोप जो कि पहले से बहुत ज्यादा डेवलप था, 1999 में कोसोवो की बॉम्बिंग करी है, वो भी अमेरिका ने करी है।
जिसके बाद कोसोवो डिसमेंबर हुआ और यूगोस्लाविया का उससे पहले डिसमेंबरमेंट हुआ, तो बड़ा तगड़ा और बड़ा बेहतरीन एग्जाम्पल था इस जगह पर अफ्रीका को ड्रॉ करते हुए। खैर, टीम श्रुति, कितना 10 बचे। पानी में आप प्लीज प्लीज मेंटेन शुरू कर। First of all, I don't understand this point that you're talking about India. What happened when in Afghanistan, India invested $2 billion in Afghanistan, and then because of political instability, the entire government went to where is Ashraf Ghani today? So first of all, give me a list. First of all, tell me something. If there is no leadership, then there is no growth model. If there is no planning, then there is no. Sorry. तेज बोलो थोड़ा। Then there is no plan. There are no resources. There is no mobilization. So the point that I'm trying to make is very simple. That for any foreign economy to visit or to play a part in your country, you need to be attractive. If there is so much instability, then how will you attract foreign investors? That's all I'm trying to say, and I'm quoting Afghanistan and India example over there. बढ़िया। तो इन्होंने क्या करा है, इन्होंने बहुत अच्छा कमबैक करने की कोशिश करी और इन्होंने कहा कि अफगानिस्तान का एग्जाम्पल से हम ये देखते हैं कि जैसे स्टैंडर्ड एंड पुअर्स वाले हैं जो लोगों को ये बताते हैं कि किस कंट्री में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और उस ट्रैकर में वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को भी एक पॉइंट रखते हैं। तो अगर अफ्रीका में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो लोग जो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स रैंकिंग निकालती है इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नेशंस की, तो वहां पर अफ्रीका नीचे आएगा और अगर अफ्रीका नीचे आएगा तो वहां पर कोई इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहेगा। ठीक है, और उन्होंने उसके लिए एग्जाम्पल दिया है अफगानिस्तान का, विच इज गुड। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स वाला इनके दिमाग में था नहीं, बट हमने थोड़ा इनको जिताने के लिए ऐड कर दिया। टीम लिपिका, मैं जाऊँ। जाओ, मना कहाँ कर रहे हैं। आप पानी पीजिएगा। तो मैं ये स्टार्ट करूँगी कि आपने कहा कोई प्लान नहीं है, तो हम जब से यही बोल रहे हैं कि प्लान एजेंडा 2063 आप सुनिए ना उसको, हम बोल क्या रहे हैं। दूसरी चीज़, आपने अफगानिस्तान की बात करी, आपने इंडिया की बात करी, बिल्कुल सही बात है। अब मैं रवांडा की बात करती हूँ। उसका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग 29 है, जो बहुत अच्छी है, जो इंडिया से भी बेटर है, जो चाइना से भी बेटर है। और वहाँ पे जितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो तो एक अलग ही विषय है, उस पर तो मैं जाना ही नहीं चाहूँगी। फिर दूसरी चीज़, इथियोपिया की बात करते हैं। इथियोपिया इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। फिर साउथ अफ्रीका की बात करते हैं। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इन अफ्रीका, नॉट जस्ट अफ्रीका बट अगर हम ग्लोबली देखें तो साउथ अफ्रीका एक बहुत अच्छे पोजीशन पे है। सो आई वुड एंड माय गुड 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 गुड। यस, मतलब हाँ ठीक, क्योंकि आपने जो अफगानिस्तान वाला स्ट्रैंग होल्ड करने की कोशिश की थी, द ब्रिलियंट कमबैक ऑन दैट, और सबसे बड़ा तो इन्होंने पकड़ रखा है इस बार एजेंडा 2063। सर नहीं, कमबैक नहीं हुआ, उसको उन्होंने बोला आप सही कह रहे हो, हमने मान लिया। नहीं, आपने सुना नहीं पूरी बात, आपने सुना नहीं उन्होंने क्या बोला। इन्होंने कहा है कि आप लगातार बोल रहे हैं अफगानिस्तान, तो सबसे पहले जो आप बोल रहे हो कि इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, तो आप एजेंडा 2063 पढ़िए। हमने बाकायदा अपना ये हाईलाइट करके रखा हुआ है कि हाउ ग्रेजुअली अफ्रीका विल बिकम अ स्पॉट ऑफ पीस, it will become a peaceful continent, and how we'll do that, we have given a map for that. उसके बाद इन्होंने रवांडा की बात करी है, 23rd रैंकिंग। उसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में फिर उन्होंने एफडीआई की बात करी, इथियोपिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, और साउथ अफ्रीका का डेवलपमेंट की बात करी। ये सारे एग्जांपल्स अच्छे थे, क्योंकि जब अफगानिस्तान का एग्जांपल आया तो एक ग्रेट कमबैक, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने पकड़ करके रखा हुआ है एजेंडा 2063। ठीक, टीम श्रुति, डिबेट के आखिरी 15 मिनट चल रहे हैं। स्वागता, स्वागता, श्रुति,
शुरू. The containers, I would like to bring them into notice कि जिन matters को वो ignore कर रहे हैं. One of them is piracy. The container ship Mozart was more than 200 nautical miles, that is 370 kilometers off the Nigerian coast in January when the pirates struck out of nowhere. Media outlets published reports of dramatic scenes on board the vessel while the ship's crew covered in a safe room fearing for their lives. The pirates quietly set out their work and it took them 6 hours to break open the door of the so-called citadel, but they did it. In the end, one of the crew members was killed and 15 others were kidnapped. And according to the International Maritime Bureau, there were 135 maritime kidnappings recorded in 2020. IMB Director Michelle Howlett stated that we see that the pirates are acting with greater impunity. They are spending more periods of time on board vessels. In one case, they were on board a vessel for more than 24 hours, totally unchallenged. गुड. इन्होंने कहा कि भैया एजेंडा 2063, रवांडा, इथोपिया, साउथ, अबे ठीक है, लेकिन साले अगर पायरेसी होगी तो तुम्हारे यहाँ बिजनेस करने कौन आएगा? और अगर इतनी ज्यादा पायरेसी है तो आपके यहाँ बिजनेस करने में इंटरेस्टेड होगा कौन? ठीक है. सो अ ग्रेट पॉइंट टीम लिपिका. मैं जाऊंगी तो मैं एक डेटा दिखाना चाहूंगी पायरेसी पे सोमालिया का. ये डेटा है सोमालिया का. पायरेसी फ्लैप नीचे कर दो थोड़ा, देख लें बच्चे. पायरेसी का डेटा है सोमालिया का जिसमें पायरेसी घटते हुए दिखाई दी. और अगर आप गल्फ ऑफ गिनिया की बात करें तो गल्फ ऑफ गिनिया भी उसी राह पे है कि वहाँ पे पायरेसी कम हो. और ये रीजनल प्रॉब्लम है. जैसे इंडिया में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, कश्मीर की प्रॉब्लम है, वैसे वहाँ पे भी पायरेसी की प्रॉब्लम है. तो ये कोई बेसिस नहीं है आपका. वहाँ पे कुछ वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट थोड़ा डाइसी हो, बट पूरे अफ्रीका की वॉइस नहीं है पायरेसी. रिसर्च वर्क इस बार तगड़ा है, ठीक है. और पायरेसी वाला जो इन्होंने पॉइंट निकाला था तो उसको ख़त्म कर दिया है सामने से, क्योंकि इन्होंने पायरेसी का डेटा दिखा दिया है कि दो ही रीजंस थे पायरेसी में. एक सोमालियन कोस्ट थी और एक गिनिया कोस्ट थी, क्योंकि दोनों वही कोस्ट हैं जहाँ पर पायरेसी थी, और उन्होंने दोनों का डेटा दिखाया है कि वहाँ पर पायरेसी खत्म हो रही है. प्लस इन्होंने एक बड़ी तगड़ी बात बोली. इन्होंने कहा जैसे इंडिया में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, जैसे इंडिया में कश्मीर की प्रॉब्लम है, वैसे ही वहां पर वो एक रीजनल इशू है. और किसी के रीजनल इशू को लेकर के आप एक कॉन्टिनेंट के फ्यूचर को जॉपरडाइज कैसे कर सकते हो? टीम श्रुति. स्वागता. स्टार्ट. From the very ancient time, we have good connection with Africa from 65,000 years ago until then. And from the Gandhi's period, during Modi, up to Modi's period. In whole time, we see various connections with Africans. In Africa, 20% of total Indian diaspora is there. But till now, in spite of that, what African normal people come over India and what type of activities they are relating themselves. Many times they are what? स्वागता. एक बार दोबारा बोलना जरा. एक मिनट. हेलो. हाँ बोलो. हेलो. हाँ बोलो. हाँ अभी सुना है. हाँ सुनाई दे रहा. अंजलि और अभिनव नहीं है, बोल दो, ज्वाइन कर लें. बोलो. एक मिनट दे दीजिए ना, बोल रहा. हाँ. कनेक्शन में मुझे तो बोलते चला गया. बोलिए ना भैया. स्टार्ट करने से पहले स्टार्ट. हाँ 20 सेकंड का टाइम पर रहते दीजिए. हाँ बोलो. Africa and India and Africa from very ancient times. Now
2% of person of Indian diaspora is living over there. But very many Africans come to India for various purposes, and sometimes in our newspaper headlines we find that they are caught with drugs or they were arrested for some smuggling or etc. etc. That means their maximum people are indulged or actively they are in criminal activities, and this kind of thing, if I look at the African nations, in many parts of there, these types of things are happening. So if they are trying to pull out this kind of mindset, they need some preparation, and this is somewhat is not found practically. Various data my opponent team and have given, everything is on that. Okay. टाइम अप. तो इनका जो लास्ट पार्ट है वो उतना ऑडिबल नहीं रहा, बट जहां से इन्होंने स्टार्ट करा था, सो इन्होंने कहा कि भाई अफ्रीका में बहुत सारा इंडियन डायस्पोरा रह रहा है, वहां पर वो पीसफुली रह रहा है और वहां पर जो है वो बिजनेस में अच्छा कर रहा है, बट इंडिया में जो अफ्रीकन डायस्पोरा रह रहा है या इंडिया में जो अफ्रीकन आ रहे हैं, मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन आर कॉट विद ड्रग्स और एनी अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज. सो इनका ये कहना है कि जो अफ्रीका में मतलब अफ्रीकन जो कहीं जा भी रहे हैं वो वहां पर जाकर के क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रहे हैं. दैट मीन्स दैट दे आर पोर्ट्रेइंग द एंटायर कॉन्टिनेंट इन अ रॉन्ग लाइट बिकॉज दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर कॉन्टिनेंट इन अदर प्लेसेस, and which means that they themselves are dooming the vice of future Africa. ठीक, बढ़िया. टीम लिपिका. हाँ. इन्होंने कहा कि अफ्रीका में ड्रग्स वगैरह क्रिमिनल एक्टिविटीज वो सब लेकर वो यहाँ पे भी पूरे बदनाम करते हैं अफ्रीका को. ठीक है. चाइना में अभी रिसेंटली कोविड पैंडमिक के दौरान इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे चाइनीज ने अफ्रीकन्स को धक्के मार के रेंट से निकाल दिया था, उनके साथ वायलेंस करी थी और उनको हैरेस किया था. उस बात का अकाउंट नहीं रखेंगे आप. चाइना कोविड फैलाता है पूरी दुनिया में, उस बात का अकाउंट नहीं रखेंगे. लाखों लाख लोगों की जानें चली जाती है, आपको अफ्रीका के ड्रग्स काउंट करने हैं. और ड्रग्स की बात हो रही है तो लेट मी जस्ट से कि अफगानिस्तान इज द हब ऑफ ओपियम ट्रेड और पाकिस्तान भी ड्रग्स एक्सपोर्ट करता है इंडिया को. तो इंडिया में अफ्रीकन से ज्यादा पाकिस्तान ड्रग्स लेकर आता है. ठीक, एक्सपोर्ट नहीं करता है, मतलब ठीक है. एक्सपोर्ट नहीं करता है पाकिस्तान अफ्रीका में ड्रग्स, इलीगल स्मगलिंग करता है. ठीक है. खैर, नाउ द क्लोजिंग कमेंट्स फ्रॉम बोथ द टीम्स. यू कैन चूज अ पर्सन. Both the captains can choose one person from their team for closing comments. And you have 30 seconds for that. सर इनके पॉइंट का एक पॉइंट हम काउंटर करके फिर नहीं. हाँ सर, क्योंकि वो बैठा हुआ है. क्लोजिंग बैठा हुआ है तो मतलब नियम तोड़ दे. ऐसे एकदम कंक्लूजन. ठीक है. 1 सेकंड. क्या? अच्छा. पहले आप बोले थे, आप तो टॉस जीते थे ना. लेकिन अभी तो काउंटर हमने दिया ना. टॉस जो जीतता है दैट हैज द लास्ट से. फर्स्ट एंड लास्ट से गोस टू द टॉस विनिंग पर्सन. जो लोग डिबेट में भाग नहीं ले रहे हैं, पता चल गया ना क्या क्या पढ़ना है. एजेंडा 2063.
DU वालों, अब 24 तारीख को तो कुछ नहीं है तुम्हारा? आई डोंट वॉन्ट एनी बडी टू मिस द डिबेट ऑन एग्रीकल्चर, क्योंकि GS के तीनों पेपर्स में वो, और इससे को मिला दें तो चारों पेपर्स में वो इम्पोर्टेंट है हर साल। खैर, टीम श्रुति, योर टाइम स्टार्ट्स। 1 सेकंड सर। 1 सेकंड क्या होता है? नाउ बोलो, कौन बोलेगा? जल्दी बोलो। हाँ। I would like to conclude by saying colonial education brought about distortion and disarticulation in African indigenous pattern of education, which was rooted in African technology. Before fully embracing colonial education, Africans were good technologists, advancing at their own rates with their resources within their environment. Africa as a continent does not realize its stakes and its potential in the world order. They are nowhere to be seen making peace with their past and get themselves out of crisis of confidence and political instability. A continent who is not able to even whisper right now says that its voice will matter in the future. All the statements that I put forth, they are not unmindful. You are deliberately being cognizant of what Africa has been in the past and what it is now. It is not a prophecy that you foretell. Sleep is death without the responsibility, so don't insult the sleeping dead. बढ़िया। तो इन्होंने बताया है भाई कि एक बड़ी अच्छी लाइन बोली इन्होंने कहा कि जब तक कॉलोनाइजर्स अफ्रीका में नहीं आए थे उससे पहले अफ्रीका बड़ा अच्छा था, और जब से कॉलोनाइजर्स आए हैं अफ्रीका ने कॉलोनाइजर्स की एजुकेशन को अडॉप्ट कर लिया है, जिसकी वजह से अफ्रीकन्स ने खुद अपने आप में वो क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस में आ गए हैं। और अपने क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस में आने के बाद में जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने क्या करी है कि वो खुद को ही भूल बैठे हैं। और जब कोई व्यक्ति स्वयं को विस्मृत कर दे, गीता वाले मोड में नहीं जाना चाहते, जब कोई व्यक्ति स्वयं को ही भुला जाए तो क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस तो होगी। और जो व्यक्ति कॉन्फिडेंस ही खो बैठा है, आत्मबल ही जिसके अंदर नहीं है, वो दुनिया की आवाज क्या बनेगा। बहुत बढ़िया। टीम लिपिका, Arushi जाएगी 15 seconds. हो गया भैया, बोलो। Even after seeing so many civil wars, limitless setbacks, watchers of colonialization, Africa has graciously developed and unrelentlessly progressing, owing to sustainable development, unlike present superpowers. Even after having immense potential to use its nuclear resources, it wants to develop sustainably. Owing to Agenda 2063, African Union agendas and NEPAD, which are unrelentlessly working towards the sustainable growth in Africa. And again, I would also 600 million hectares of arable land, if used properly in Africa alone, can produce for 3 billion people every year, which is about 40 to 55% of world's population. More than there is so much youth potential in Africa, which if correctly used, can make Africa a potential superpower in the future. The only thing is that growth is gradual, so Africa should get a fair chance of its share. बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, तो हेलो, हाय। So, hey. Now, इन्होंने जो काउंटर दिया है उसमें इन्होंने कहा है कि अफ्रीका एक तो सस्टेनेबली डेवलप हो रहा है अनलाइक द वेस्ट। अफ्रीका चूंकि सस्टेनेबली डेवलप हो रहा है तो 2030 एजेंडा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वेयर दे हैव ड्रॉप द बॉम्ब दिस टाइम इन देयर कंक्लूजन इज व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। 2030 agenda. 2030 agenda is the future of the world,
and the word was Africa is developing sustainably rather than path that was taken by the West. तो ऑब्जेक्टिविटी डिबेट की इस जगह पर थी. दुनिया का फ्यूचर क्या है? 2030 एजेंडा. और चूंकि दुनिया का फ्यूचर 2030 एजेंडा है, इसलिए चूंकि अफ्रीका एक कंट्री कर रहा हो, रवांडा कर रहा हो, युगांडा कर रहा हो, आपका मलावी कर रहा हो, एक कंट्री सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहा हो, लेकिन वो पूरे कॉन्टिनेंट को रास्ता दिखा रहा है कि अगर डेवलप होना है तो ऐसे होना है, नहीं होना है. बट वी विल नॉट harm the mother nature. We will do it our own tribal way. We will remain tribal. We will not, but we will not do anything wrong with the nature. So if you want to develop yourself sustainably, because that is the future that the world aspires for. And when they are saying that the Africa will be a future of the will be the voice of the future, the only rationale behind that is because the future is sustainable development, achieving the sustainable development goals. Future is SDG framework of 2030, and then Africa is well on the course. And the most important part that they have said during the course of their debate is, it is Africa's tribal ways. जहां से इंट्रो शुरू करा था, इट वॉज अफ्रीका. इन्होंने इंट्रो दिया था कि उन्होंने एक बढ़िया इंट्रो दिया था, सस्टेनेबल क्लाइमेटिक प्रैक्टिसेस, उसके अलावा ट्राइबल वेज. वो जो है जहां से इन्होंने शुरू करा था इंट्रो में, वो है आपका फ्यूचर, पूरी दुनिया का फ्यूचर वो है. और इसलिए द वॉइस ऑफ अफ्रीका विल मैटर. ठीक, तो वेरी ब्रिलियंट कंक्लूजन. और अब आते हैं डिबेट की एनालिसिस पर. देखिए, इंट्रो दोनों तरफ से बहुत धांसू था. सो फुल मार्क्स फॉर इंट्रो फ्रॉम द बोथ साइड्स. दोनों लोगों ने अपने अपने साइड का इंट्रो बिल्कुल क्लियरली बोला. इन्होंने 2013 प्लेस के बारे में बात करी, इन्होंने पूरा अफ्रीका के फ्यूचर और उन सारी चीजों के बारे में बताया. उसके बाद में इधर वाली जो टीम थी, इन्होंने क्या करा इस बार, और खासकर टॉप परफॉर्मर इस बार लिपिका रही, जो पिछले डिबेट में मेजर डिसअपॉइंटमेंट थी अपनी टीम के लिए. इस बार इन्होंने बिल्कुल कट टू कट सामने वालों का पॉइंट्स पकड़ करके और उनका गला काटा है. ठीक है, 30-30 सेकेंड में इन्होंने पॉइंट्स इनके तोड़े हैं. तो जब इधर वाली टीम से फ्यूचर ऑफ अफ्रीका की बात आई कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में वर्स्ट परफॉर्मर्स हैं, अब दिस कुड हैव बीन अ मेजर ड्रॉ. अगर ये लोग इसको नहीं पकड़ते तो ये फिर डिबेट हार गए थे. लेकिन इस बार इन्होंने इसको पकड़ा और इन्होंने इस बार एनालॉजी ड्रॉ करी बाकी दुनिया से कि इंडिया का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहां था. आज के 20 साल पहले इंडिया में कितनी पॉवर्टी थी? 1991 से पहले इंडिया में कितनी पॉवर्टी थी? बट इंडिया में कम हुई ना. So how you can deny chance to an entire continent based on their past dogmas and where their past was decided by not them but their colonizers. तो आप उनको डिनाई कैसे कर सकते हो? फिर ये वाला पॉइंट उन्होंने ठीक पकड़ा. फिर उसके बाद इधर से एक बहुत तगड़ा पॉइंट आया था जहां पर मुझे लगा था कि ये लोग डिबेट ले गए, और वो था पॉलिटिकल लीडरशिप एंड सिविल वॉर. बट अगेन इधर से जो कोसोवो, युगोस्लाविया, इंडिया, निर्भया, दुनियादारी जो इन लोगों ने बिल्कुल तोड़ा पकड़ करके, वो अगेन इट वाज अ वेरी गुड रिवर्सल ऑफ दीज पॉइंट्स. फिर उसके बाद एक बहुत बढ़िया पॉइंट आया था जिसमें नाम लिए थे रुचित ने कि अबू अहमद ये कर रहे हैं, सूडान में ये हो रहा है, साउथ अफ्रीका में ये हो रहा है, जिम्बाब्वे में ये हो रहा है. तुरंत पलटा कि भैया ये सब हो रहा है, ये समस्याएं हैं, इनका सोल्यूशन देने के लिए तो हम 2063 एजेंडा लाए. इट वॉज अगेन अ ग्रेट रिवर्सल. उसके बाद बहुत बढ़िया पॉइंट बोला था शायद भूमित ने. इन्होंने कहा था कि भैया आप क्या कैपेसिटी नहीं है, आप अपने रिसोर्सेज को माइन नहीं कर पा रहे हो, तो आप कैसे अपनी फ्यूचर की वॉइस बनोगे. अगेन उसको बहुत तगड़ा पलटा इन्होंने. किससे? इन्होंने कहा भैया आज अफ्रीका में कैपेसिटी नहीं है, लेकिन आगे होगी. और अफ्रीका की कैपेसिटी और अफ्रीका के रिजॉल्व कैपेसिटी के लिए देखी जा सकती है जब अफ्रीका चाइना को कॉल आउट कर रहा है, जब अफ्रीका कलेक्टिवली पेरिस बड़ा ट्रीटी बना रहा है, और जब अफ्रीका ये बोल रहा है कि एक यूनियन होगा अफ्रीका और अफ्रीका यूनाइटेड अफ्रीका होगा. फिर इन्होंने कहा कि अफ्रीका में जो है बुर्किना फासो का गौरव ने बहुत तगड़ा, मतलब अनदर मोमेंट जहां पर डिबेट सील हो सकती थी वो थी बुर्किना फासो. और उन्होंने बोला कि अफ्रीका विल बी अ वॉइस, बट अपने लिए नहीं, किसी दूसरे के लिए. लेकिन फिर इस बार ये लोग बिल्कुल तैयार बैठे थे और इन्होंने फिर उस पॉइंट को पकड़ा, और इन्होंने इस बार उसको पकड़ा कि यूएसए वाला जो बिडेन वाला इन्होंने एग्जाम्पल दिया. उसके बाद इन्होंने कहा कि अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है वो इट इज वो साथ आ रहा है, इट इज कमिंग टुगेदर टू एड्रेस देमसेल्व्स 90% गुड्स. फिर अंजलि, हम राजधानी एक्सप्रेस
कि हमारे 90% गुड्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं और हमारी फिशिंग ऐसी हो रही है और जो अफ्रीका है वो पूरी दुनिया की फिशिंग में कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद फिर इधर से वायलेंस के एग्जाम्पल शुरू हुए कि गवर्नमेंट फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन का एग्जाम्पल आया था, फिर इन्होंने उसको भी उधर से काउंटर करा कि भैया इंडिया में ये सब भी हो रहा है। और उसके बाद में इन्होंने बार बार दे केप्ट गोइंग बैक टू द विजन डॉक्यूमेंट 2063 डॉक्यूमेंट, और इन्होंने एक लाइन जहां से डिबेट इन लोगों ने अपनी तरफ से एक ऐसा पॉइंट दे दिया था जहां पे डिबेट सील हो सकती थी, वो पॉइंट क्या था कि भैया इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल तरीका है। हम एजेंडा 2063 में क्या बोल रहे हैं, स्टेबल और पीसफुल अफ्रीका होगा, यूनाइटेड अफ्रीका होगा, हम अपने अफ्रीका को फाइनेंस करेंगे और हम अफ्रीका के डेवलपमेंट के लिए हम खुद जिम्मेदारी ले रहे हैं, ये सारी चीजें, और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग की बात भी उसमें करी गई थी। फिर उसके बाद इन लोगों ने शुरू किया अफगानिस्तान का एग्जाम्पल देना, जिसको इधर से अच्छी तरीके से काउंटर किया गया। फिर पायरेसी का एग्जाम्पल जो एक 30 सेकंड के अंदर इन्होंने खत्म कर दिया था। और उसके बाद में स्वागता का एग्जाम्पल था इंडियन डायस्पोरा का, जिसमें पाकिस्तान से उन्होंने एक्सपोर्ट करा दिए, ठीक है। और उसके बाद में आपका जो फाइनल कंक्लूजन इस टीम से आया वो बड़ा बढ़िया था, और वो इसलिए बढ़िया था कि अफ्रीका कहीं ना कहीं आत्मबल की कमी से जूझ रहा है। लेकिन उस कंक्लूजन का जो काउंटर इधर से आया कि भले ही आज वो आत्मबल की कमी से जूझ रहा है, बट अफ्रीका एज अ विजन। और अगर हम आत्मबल को, अगर हम आज की क्राइसिस को आधार बनाएंगे, तो एक समय पे अमेरिका में भी सिविल वॉर हुआ था, यूरोप भी डिसइंटीग्रेटेड था, 100 साल भी नहीं हुए हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुए अभी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर पूरा यूरोप पेरिल्स में था, लंदन की बॉम्बिंग हुई थी, लंदन में प्लेग फैला था, लंदन में लोग भूखों मर रहे थे, आपका ये पोलैंड जैसी जगहों पर कंसंट्रेशन कैंप्स लगे हुए थे, हजारों करोड़ों लोगों को मारा जा रहा था, रशिया में फेमाइन हुआ था, स्टॉलिन ने 6 करोड़ लोगों को मार दिया था, माओ ने कल्चरल रेवोल्यूशन कराई थी। अगर आप पास्ट पर जाओगे तब तो आप सबको मौका ही डिनाई करते रहोगे। और फिर इन्होंने जो कंक्लूड किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, क्योंकि वही दुनिया का फ्यूचर है। और अफ्रीका की जो ट्राइबल प्रैक्टिसेस हैं, जिनके मैंने ग्रुप पे वीडियो भेजे थे, वो इसीलिए भेजे थे, वो आपकी डिबेट का सबसे बड़ा मटेरियल उसी जगह था। मैंने आपको ये बताया नहीं था। जब मैंने डिबेट फ्रेम करी थी वॉइस ऑफ द फ्यूचर, तो कीवर्ड था फ्यूचर। फ्यूचर कैसा होगा, क्योंकि जैसा फ्यूचर होगा वैसी ही वॉइस होगी, तो वो कंपेटेबल होगी। अगर फ्यूचर अलग है और वॉइस अलग है तो कंपेटेबल नहीं होगी। तो इसलिए आज की डिबेट का जो रिजल्ट है, सर पिछली बार डिबेट एक तरफ थी, बट इस बार बहुत ज्यादा देखना पड़ रहा है कि दोनों में से इंच का डिफरेंस होगा। पिछली बार थोड़ा गैप ज्यादा था, इस बार इंच का डिफरेंस होगा। जी रिजल्ट बताएं बाप। नहीं बता दें भाई। हाँ नहीं हाँ भाई, हमारे दर्शक रिजल्ट घोषित करना चाहते हैं, मेरे पास अधिकार नहीं है। खैर देखिए, ऐसा है कि इस बार की डिबेट का लेवल बहुत अच्छा था। और पिछली बार दोनों टीम्स ने, पिछली बार एक टीम ने रिसर्च ज्यादा करी थी, बट वो उस रिसर्च को यूज नहीं कर पाए थे, और दूसरी टीम ने डिबेट के अराउंड खेल करके ही मैदान मार लिया था। इस बार कम ह्यूमन रिसोर्सेज के होने के बावजूद दोनों टीम बहुत तगड़ा प्रिपेयर थी, और इस बार दोनों टीम्स ने अपने रिसर्च का बहुत अच्छा यूज किया। इट्स जस्ट दैट कि इधर वाली टीम ने उन रिसोर्सेज का ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज किया, और इस वजह से इस बार की विजेता है टीम श्रेया। ठीक, और इस बार की विजेता है टीम श्रेया, और श्रेया की अनुपस्थिति में लिपिका जो है वो केयर टेकर लीडर थी, और लिपिका ने अपनी टीम के लिए इस बार बड़ा तगड़ा काम करा है। पिछली बार डिबेट की जो रेवलेशन थे वो भूमित थे, और इस बार की डिबेट की जो रेवलेशन है वो लिपिका है, क्योंकि इन्होंने पूरा मामला 3 आर्गुमेंट में इन्होंने पूरा मामला निपटाया है। ठीक है, तो बधाई हो। और अब आपका जो काम है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। काम आपका ये है कि डिबेट में जितनी रिसर्च हुई है, आप हर एक बंदा उसको पढ़ करके डिबेट कंपाइल करेगा, जिससे इंडो अफ्रीका टॉपिक को आप पूरी तरह से ख़त्म कर सको।
डिबेट कराने का मैंने बार बार आपको बोला है, जो मेजर ऑब्जेक्टिव होता है वो ये कि यू आर एबल टू फ्रेम योर थॉट्स इन अ बेटर वे और क्विकली। वहां पर एक आंसर लिखने के लिए आपके पास 10 मिनट होते हैं और 10 मिनट के अंदर आपको 250 वर्ड लिखने हैं, ठीक। अगर आप आंसर को देख करके 15 सेकंड में, 20 सेकंड में, 30 सेकंड में स्ट्रक्चर बना पा रहे हो तो आपके आंसर का स्ट्रक्चर हमेशा अच्छा होगा। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो जैसे जैसे याद आता जाएगा वैसे